ادھر ساتھ بھی بیٹھے ہیں اور دوسرے لوگ بھی پہلے دن سے لے کے اور اب تک مسلسل اپنے عوام کے درمیان میں ہیں، مشکل وقت میں بھی ساتھ تھے اور ساتھ دے رہے ہیں، اور مسلسل کوشش جو ان کا رہا ہے کہ سب سے پہلے امیڈیٹ جو ریلیف پہنچانے کی ضرورت تھا اس پہ سب سے زیادہ فوکس اور ایمفیسس تھا اور ہے۔ لانگ ٹرم میں اور شارٹ میڈیم اینڈ لانگ ٹرم میں ہمارا 3 Rs کا اسٹریٹجی ہے۔ سیلاب کے متاثرین کو، سیلاب کے متاثر علاقوں کو مدد کرنے کے لیے یہ ہمارا 3 Rs کا اسٹریٹجی ریلیف، ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کے پرنسپلز پہ مبنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی سندھ حکومت کے سارے ممبران، چیف منسٹر سندھ اور اس کی پوری ٹیم دن رات محنت کر رہے ہیں کہ ہم اپنے صوبے کے عوام کو اس مشکل وقت میں ریلیف پہنچائیں۔ آپ کو یاد ہوگا 2010 کے سپر فلڈز کے بعد 2011 میں ہم نے اس سے کم بارش دیکھے تھے، لیکن تب بھی بہت ہی نقصان ہوا تھا اور پورا پاکستان ایک ہو چکا تھا۔ وفاق کی جو قیادت تھا، جو حکومت تھا، صوبائی حکومتوں کی جو حکومت تھے، سب ایک پیج پہ تھے، پورے پاکستان کو گیلونائز کیا تھا، پورے پاکستان کو موٹیویٹ کیا تھا، ڈونیشنز اور ریلیف کا مہم چل رہے تھے، پوری دنیا کو انگیج کیا تھا، دنیا کے ممالک کو، یونائٹڈ نیشنز کو، بین کی مون صاحب جو اس وقت یونائٹڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل تھا وہ پہنچ چکا تھا، اور اس نے تو کہا تھا کہ میں نے اپنے زندگی میں اتنا بڑا نیچرل ڈیزاسٹر نہیں دیکھا، اور آج ہم اسی قسم کا جو نیچرل ڈیزاسٹر ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے وزیر اعظم صاحب کل انشاءاللہ تعالی یہاں پہنچے گا، پورا صوبہ کے لیے جو ریلیف، ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کا جو ہمارے ضروریات ہیں وہ ہمارے امیدوں پہ پورے اترے گا، اور ہمارے عوام کے لیے جو اس مشکل وقت میں، اتنے مشکل وقت کے سامنے کرنے کے بعد جو ہم اس وقت جو ضرورت ہے، مثلا جس طریقے سے لوگوں کو کاروبار، لوگوں کے دکانیں تباہ ہو چکے ہیں، جس طریقے سے ہمارے کسان کا فصل صوبہ بھر میں نقصان کا سامنا کر رہے ہیں، ہم لوکس کے بعد، کورونا کے بعد، یہ ہمارے عوام اور ہم اور صوبہ سندھ یقین کرتے ہیں کہ جیسے ہی عمران خان صاحب یہاں پہنچے گا، وہ کراچی کا پیکیج کا ہم سن رہے ہیں، جو بھی سیلاب سے متاثر علاقے ہیں، چاہے وہ کراچی ہو، عمر کوٹ ہو، بدین ہو، میر پور خاص ہو، ہم امید کرتے ہیں کہ سندھ حکومت ہمارے ساتھ، سندھ حکومت کے ساتھ وفاقی حکومت مل کے چلیں گے، اور ہمارے عوام کو ریلیف پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے وہ اس پہ پورے اتریں گے۔ اس وقت تک NDMA نے سندھ حکومت کو 5000 ٹینٹس دیے ہیں، 2000 ٹینٹس دیے ہیں، ہمارا ریکوائرمنٹس اس سے بہت ہی زیادہ ہے۔ NDMA نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، نیشنل ڈیزاسٹر جہاں بھی ہوتے ہیں ان کے امیڈیٹ ریلیف پہنچانے میں ذمہ داری ہوتا ہے۔ 3 نالوں صاف کرنا صرف سے بات نہیں ہوگا، ہم دیکھ رہے ہیں ان کی طرف بھی کہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی صف اول کا کردار ہمارے ساتھ ادا کریں گے، ان کے پاس ایکسپرٹیز ہے، فائنانسنگ ہے، جو ہمارے عوام کی اس وقت ضروریات ہے۔ میں آپ سب سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ ہمارے مدد کرنے اس اویئرنیس میں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو اس وقت شاید اتنا وہ اویئرنیس نہیں ہے کہ میر پور خاص اور بدین اور عمر کوٹ کے عوام کس قسم کی صورتحال کا مقابلہ کر رہے ہیں، جہاں ہاں کپرو سانگر میں بھی، اور بہت سے پورا لسٹ ہے یہاں۔ چیف منسٹر سندھ صاحب نے نہ صرف کراچی کے مختلف ڈسٹرکٹس
میں مسلسل وزٹ کیے ہیں, خود موجود رہا ہے. اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ کہ نہ صرف اس پرسنٹیج آف دا سٹی جہاں ان کا قانونی اور ایڈمنسٹریٹو ذمہ داریاں ہیں, مگر ان علاقوں میں بھی جہاں شاید وہ لیگل اور ایڈمنسٹریٹو رول نہیں تھا, لیکن نیشنل ڈیزاسٹرز ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں آپ نے اپنا نہ صرف قیادت دکھانا پڑتا ہے, آپ کا ذمہ داری ہے, آپ کا ورکنگ جو جاب ڈسکرپشن ہے اس میں آتے ہیں. آپ نے ہر پاکستانی کا مدد کرنا ہے, ہر صوبہ کا مدد کرنا ہے, شہر کا مدد کرنا ہے. آپ یہ نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کسی صوبہ نے مراد علی شاہ کو چیف منسٹر بنایا, دوسرا صوبہ نے بزدار کو چیف منسٹر بنایا, تو آپ صرف بزدار کے صوبے کو دیں گے. آپ نے پورا ملک کا, پورا پاکستان کے عوام کے ساتھ دینا ہے. جہاں تک آپ نے ہمارا اپوزیشن لیڈر سے جو ملاقات تھا بہت اچھا گزرا, اور کل جو رہبر کمیٹی ہے وہ بھی ملے, اور they have even decided کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ آنر ہوگا کہ ہم اس APC کو ہوسٹ کریں. تو انشاءاللہ تعالی اس فورم پہ جس طریقے سے ہم ایک نیا اپڈیٹڈ ہمارا چارٹر ڈیموکریسی پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, جیسے ہم آج کے جو معاشی صورتحال ہے, تاریخی مشکلات ہیں, عوام کے مسائل ہیں, اس پہ ایک ون پیج پہ آنا چاہ رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہوگا جہاں یہ سارے ایشوز ڈسکس کیے جائیں گے. کراچی کے جو ایڈمنسٹریٹر ہے, اب یہ تو obviously they've all been busy in these floods and draining the water, انشاءاللہ جلد ہی اعلان کریں گے. کراچی کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے, سندھ کا کیپٹل کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے, 2 سال ہو گئے ہیں. لاہور کا جو پنجاب کا جو لوکل باڈی نظام ہے, جیسے عمران خان آیا انہوں نے ختم کر دیا. پختونخوا میں جو لوکل باڈی نظام ہے, جیسے عمران خان کی یہ وفاق میں حکومت آئے انہوں نے ختم کر دیا. بلوچستان میں جو لوکل باڈی نظام ہے وہ نہیں چل رہا تھا. صرف پاکستان پیپلز پارٹی میں اتنے برداشت ہیں کہ آپ اپنا کیپٹل سٹی کو اپنے مخالف کے حوالے کریں, کہ آپ کا مینڈیٹ ہے, اس شہر کے عوام نے آپ کو منتخب کیا ہے, ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن جہاں تک ایڈمنسٹریٹر کی بات ہے, یہ سندھ حکومت کا فیصلہ ہے, اور سندھ حکومت یہ فیصلہ جیسے ان کو اعلان کرنا چاہتے ہیں وہ ویسے اعلان کریں گے. میں نے ریزلٹس لینا ہے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب سے. تو چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کو اور اس کی حکومت کے پاس اختیار ہے اب کہ وہ اب ایسا اچھا انڈیویجول لے کر آئے جو کہ جس سے مراد علی شاہ صاحب ریزلٹس بھی لے سکے, اور مجھے یہ یقین ہو کہ یہ ساتھ مل کے ڈیلیور کر سکے اس شہر کے عوام کے لیے. کچھ میں نے تو حساب ان سے لینا ہے, تو ان پہ ہم یہ چھوڑتے ہیں. چیئرمین صاحب یہ بتا دیجیے گا, نواز شریف چیئرمین صاحب یہ بتا دیجیے گا, چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا, چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر انشاءاللہ جیسے ہی نواز شریف صاحب کا صحت اور علاج کا سلسلہ ختم ہوتا ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ کراچی سے اب تو پانی بھی نکل چکا ہے, بہت سارے علاقوں سے کراچی کا پانی جو ہے وہ نکل چکا ہے, لیکن عمرکوٹ, تھر, کاچھو, جوہی میں اب تک صورتحال جو ہے وہ بہت خراب ہے. لیکن عمران خان کا جو دورہ ہے جس کا شیڈول صرف کراچی کا ہے, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان کو عمرکوٹ بھی جانا چاہیے, تھر بھی جانا چاہیے, جوہی بھی جانا چاہیے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ 2010 میں جب سیلاب آیا تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے وطن کارڈ ایشو کیا, جو لوگوں کو ترت جو پہنچے تھا امداد پہنچا. اور 2011 میں جب بارش آئی تو پاکستان کارڈ کے نام پہ لوگوں کو جو ہے امداد دیا گیا. کیا وفاقی سرکار کو اس طرح کا کوئی اعلان نہیں کرنا چاہیے؟ تھینک یو سر. جہاں تک وزیر اعظم صاحب کا اسکیڈول ہے, یہ پروگرام ہے, وہ نہ میرے پاس ہے نہ سی ایم صاحب کے پاس ہے, اس کو خود پتہ ہوگا کہ پروگرام اور اسکیڈول کیا ہوگا.
कराची से बहुत ही ज़्यादा जगह से पानी हमने निकाले हैं। कुछ ऐसे जगह हैं जहां अभी भी अवाम इस मुश्किल का सामना कर रहे हैं और उनका हम मदद कर रहे हैं। जैसे आप कह रहे हो, ना सिर्फ हमारा कैपिटल सिटी में मगर सूबा भर में ऐसे जगह हैं जहां अवाम बहुत ही मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। यहाँ हमारा फाइनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पोजीशन जो कराची में है बुरा है, लेकिन जो मुश्किलात मेरे वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में उनको सामना करना पड़ रहा है बहुत ही ज़्यादा है। गुर्बत वहाँ बहुत ही ज़्यादा है और उनका जो इनकम है, उनका जो एवेन्यू है जनरेट करने के लिए, अपने आप को खिलाने के लिए, जो उनकी फसल है वो भी इस वक्त तबाह हो चुका है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत ने वतन कार्ड, पाकिस्तान कार्ड का सिलसिला किया था, ऐसे ना सिर्फ हमारा कैपिटल के डिस्ट्रिक्ट्स में, सूबा में हर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ चाहे वो स्वात में मुतासर हो या गिलगित में मुतासरीन हो, उन सबको ये सपोर्ट की ज़रूरत है इस वक्त। और इंशाअल्लाह ताला कल आके ही वज़ीर आज़म साहब ये ऐलान करेगा। बता दीजिएगा चेयरमैन साहब, ये बता दीजिएगा चेयरमैन साहब, आपसे ये हमारा सवाल है। उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, आप इमरान खान से उम्मीदें लगाकर बैठेंगे वो सिंध आएंगे, कराची के लिए कसूरी पैकेज का ऐलान होगा, लेकिन वो सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम ये लगाया कि कराची जो डूबा वो सिंध हुकूमत की इंतज़ामी नाअहली की वजह से डूबा। तो इंतज़ामिया सिंध हुकूमत के पास, इसका मतलब सिंध हुकूमत की नाअहली की वजह से कराची डूबा, ये वज़ीर आज़म का कहना है। आप क्या कहेंगे? मैं उम्मीद करता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब के आने से पहले वो एक्सपर्ट्स उसको ब्रीफ करेगा, समझाएगा कि किस तरीके से ये 100 साल बाद ये मानसून का सामना करना पड़ा। और जैसे चीफ अवामी स्टाफ साहब ने कल कहा कि कोई भी शहर इस मुल्क में इस किस्म का कुदरती आफात का सामना मुश्किल से करता, तो मुझे उम्मीद है जब इमरान खान साहब पहुंचता है, अगर उसका ये राय भी था, वो राय नहीं रहेगा। चेयरमैन साहब, मेरा सवाल है, इधर से एक सेकंड, इधर अकरम बलोच इधर देख ले भाई यार, अरे यार शुरू एकदम और जो इदारा CCI इसमें मुकम्मल तौर पर हमें नाकाम दिखाई देता है। लेकिन कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये ऐलान किया कि आईन सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार देती है कि वफाक और हुकूक के दरमियान जो तनाज़ात हैं उसके हल के लिए हमें मुकम्मल इख्तियारात हैं। ये दरवाज़ा खुल गया है, ये अपॉर्चुनिटी है। क्या सूबा सिंध इस अपॉर्चुनिटी से मुकम्मल तौर पर फायदा उठाने की कोशिश करेगी या करना चाहिए? मैंने ऐसे बयान नहीं देखा है चीफ जस्टिस साहब से। I don't really necessarily want to comment on something in detail that I am not fully educated about. जहाँ तक सूबे और वफाक के दरमियान जो इश्यूज है, जुडिशरी नहीं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली जो है हमारे फोरम्स मौजूद है जहाँ ये इश्यूज हल होने चाहिए। लेकिन जो भी इश्यूज होंगे, अगर मेरा इशू है NFC अवार्ड पे इनके साथ, अगर मेरा इशू है, बहुत से इश्यूज होंगे, कुदरती आफात में आप इश्यूज तो भूल जाते हैं ना। उस वक्त हम सब पाकिस्तानी हैं, उस वक्त हमारे पाकिस्तान के अवाम मुश्किलात के सामना कर रहे हैं, डिफिकल्टीज एक जगह, मसले एक जगह, सियासी झगड़े लड़ाई एक जगह, और कुदरती आफात में हमें सब मिलकर काम करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि जो चीफ जस्टिस का बयान है वो इसी उसका इंटेंशन यही होगा। और जैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चीफ जस्टिस साहब अदालत जो है वो जो सिंध के अवाम की पैसा है वो उसको, जैसे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने कहा, वो अगर सिंध के अवाम पे खर्च हो, कराची के जो हमारा कैपिटल सिटी है वहाँ खर्च हो, तो फिर वो हमारा अवाम के एक बहुत ही बड़ा मसला का हल उसमें ही होगा। और जहाँ तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारा NFC शहर का, उन चीज़ों पर कॉन्स्टिट्यूशनल रूलिंग्स भी
वहां से आएंगे, लेकिन मैं एक और बार आपके सामने रिएटरेट करना चाह रहा हूँ, नेशनल डिजास्टर है। 100 साल बाद ना सिर्फ ये पूरा मानसून का सिलसिला, मगर वो जो एक दिन 2-3 दिन में वो जो तेजी के साथ ये नेचुरल डिजास्टर हम सब पे गुजरा, उसमें हमें आपस के जो पार्टिजनशिप है, जो ये पाकिस्तान की तारीख है। आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ के वक्त जब सिलसिला आया था, क्या उस वक्त कोई एतराज कर रहा था कि कौन है डिक्टेटर और कौन है जमहूरी पसंद में? हम सब एक होके उनके लिए मदद करना चाहते। 2010 का फ्लड्स थे या 2011 की बारिश के नतीजे में फ्लड्स थे, उस वक्त हमारा सियासी इख्तलाफात एक जगह थोड़ा सा सारे सूबाई हुकूमत ने कंट्रीब्यूट किया, और लायन शेयर जो है वफाकी हुकूमत ने कंट्रीब्यूट करके सारे सूबे के अवाम को मदद किया। तो ये जो पार्टिजनशिप है, सियासी डिफरेंसेस है, वो रहे कुदरती आफात में, नेचुरल डिजास्टर्स में सियासी बयानबाजी उस पॉइंट स्कोरिंग नहीं होना। सर ये बताएं चेयरमैन साहब, मेरा सवाल है, इस ये वक्त जो इधर- सर चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट्स साहब, हैं, ये मेरा सवाल है, रुक जाए, मैं काफी देर से। चेयरमैन साहब, सर, जो डिस्ट्रिक्ट्स मेरा हैं, सवाल जो ये है सैलाब कि एक तो आपने बारिशों का जिक्र किया, बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ हुई हैं कराची में भी और सिंध के दीगर अजला में भी। लोगों के कारोबार और उनके जो घर थे उनको नुकसान पहुंचा। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम उनके लिए कोई रिलीफ का भी जो आफत ज़दा करार दिया गया उसके तहत करेंगे। तो क्या आपने सिंध गवर्नमेंट को कोई डायरेक्टिव्स दिए? और दूसरा सवाल ये है कि कराची का इलाका डिफेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ था, जिस तरह बाकी भी इलाके हुए, बट डिफेंस में अब तक लोगों को सामना करना पड़ा है। वहाँ पर जिन लोगों ने जो टैक्स पेयर्स हैं उन्होंने जब एहतजाज किया कैंटोनमेंट बोर्ड के ऑफिस पे जाके, तो उनके ऊपर FIR दर्ज हो गई। तो एक तो आप क्या कमेंट करेंगे कि ये जो FIR दर्ज होने वाला मामला है, और दूसरा जो रिलीफ के लिए आपने कोई डायरेक्टिव? रिलीफ के लिए आप देख रहे होंगे दिन रात ये सब काम कर रहे हैं, और इमीडिएट जो इस वक्त का इमीडिएट इशू है, हमें जहाँ अफेक्टेड एरियाज है, जहाँ पानी मौजूद है, वहाँ उनको उसको निकालने के लिए देन वी नीड अ लॉन्ग टर्म, जैसे मैंने शुरू इंट्रोडक्शन में कहा कि 3 आवर्स हमारा रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन का जो प्लान है वो हमारा लॉन्ग टर्म फोकस होगा। सिंध हुकूमत का कुछ अभी से जो मंसूबे हैं, मसलन अगर आपका फैमिली में आपका ब्रेड अर्नर जो है वो खुदा ना खास्ता फौत हो चुका हो, ये फ्लड्स की वजह से या कोविड की वजह से, तो सिंध हुकूमत आपको पैसा और फैसिलिटी देगा ताकि वो खानदान जिसका सिंगल ब्रेड अर्नर है जो फौत हो चुका है उसको हम पैसा पहुंचाए, उसको हम रिलीफ पहुंचाए। कुछ हमारे सीड्स की सब्सिडीज है, फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी है, तो कुछ इस तरीके से हम सपोर्ट ज़रूर करना चाह रहे हैं। लेकिन जो हमारा रिक्वायरमेंट है, जो हमारा अवाम का रिक्वायरमेंट है, उसका फिस्कल स्पेस हम नहीं पूरा कर सकेंगे अकेला। जहां हम कराची के लिए और कराची के लिए वर्ल्ड बैंक से और दूसरे इदारों से हमने कुछ लोन्स लिए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स के लिए, आई एम नॉट श्योर वेदर हम इस किस्म का फाइनेंसिंग बाहर से मीर खास के लिए या उमर के लिए बंदोबस्त कर सकेंगे। हमें अपना पूरा एफर्ट करना पड़ेगा, वहाँ भी रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन वफाकी हुकूमत जैसे 2010 में 2011 में सफ़े अव्वल का किरदार उनका था, आज भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा जो 3 R's का स्ट्रैटेजी है, रिलीफ, रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन के लिए सिंध हुकूमत के साथ साथ डोनर्स के साथ साथ वफाकी हुकूमत सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेगा। बहुत से कराची के इलाके मुतासिर थे इस मानसून्स में, पूरा सूबा में हुआ। लेकिन जैसे आपने कहा है डिफेंस को जो जिस तरीके से एक तो उनका आई थिंक एक्सपेक्टेशंस अवाम के ज़्यादा था कि वहाँ इस तरीके से नहीं होता, अंदाज़ा भी नहीं कि just कितना जितना ये था वो भी people don't understand कि क्वांटम कैसा था। और जी बिल्कुल डिफेंस के अवाम भी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ये चीफ मिनिस्टर साहब ने ना सिर्फ उन इलाके में जहाँ उसका एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी था, DHA में भी जो भी हमसे हो सका पंप्स के
डी वाटरिंग के लिहाज से साथ साथ मिलके काम करने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ तक रिलीफ है वो मैं उम्मीद करता हूँ कि DHA और CBC जहाँ वो देते हैं अपना टैक्सेस एक्सेट्रा, वो वहाँ पूरा अगर उनके एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर सकते हैं तो फिर हम अपना प्रायोरिटी जो है वो गरीब तर और जो लोग वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान है जिनके पास कुछ नहीं है उनका हमें बहुत सोचना पड़ेगा कि कैसे रिलीफ पहुँचा सकते हैं। जो ये एहतजाज हुआ आई थिंक it is I don't know who or how FIR का details मुझे नहीं पता, लेकिन it is insensitive कि इस वक्त लोग नाराज़ है, जज्बाती है, चाहे चले उसका अगर DHA का कसूर ना भी हो let's say, फिर भी हमें बर्दाश्त दिखाना चाहिए, हमें हौसला दिखाना चाहिए। अवाम अपना नाराज़गी अपना दुख का इज़हार अगर करना चाहे उसका जवाब आप FIR में नहीं मदद करने में और उनके मसाइल का हल निकालने में हम चेयरमैन साहब मेरा एक सवाल है। स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर आसिम सलीम बाजवा साहब ने कल रिज़ाइन किया है अहमद दुरानी साहब की स्टोरी के बाद, और उनके ऊपर मुख्तलिफ जो चार्जेस उस स्टोरी के अंदर लगाए गए। क्या आप इसकी कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन का कोई मुतालबा करते हैं इस बारे में? ये बहुत इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये प्रेसिडेंट्स ये तरीक़ाकार अब बन चुका है कि आपको अब आप पहले गिल्टी हो जाते हो, फिर आपको अपने आप को इनोसेंट एस्टैब्लिश करना पड़ता है। और जो प्रेसिडेंट इसी इमरान खान ने लगाया था, जो स्टैंडर्ड इमरान खान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNAs, MPAs, मिनिस्टर्स, स्पेशल असिस्टेंट्स और एडवाइजर्स के लिए रखा था, जो स्टैंडर्ड इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब के मिनिस्टर्स का, नवाज शरीफ साहब के एडवाइजर्स और स्पेशल असिस्टेंट के लिए रखा था, वो ये था कि इल्ज़ाम पहले लगता था, फिर ट्रायल शुरू हो जाता था, JIT में बहुत से इदारे बिठाए जाते थे, वो अपना इन्वेस्टिगेशन करते थे, साथ साथ आप दोस्त जो है आपका मीडिया में कोई एक ट्रायल भी साथ चल रहा होता था, और फिर हम इस मुश्किल सूरत हाल में अपना सफाई भी करने की कोशिश करें और बहुत सख्त ऑर्डर्स भी आते रहे मुख्तलिफ इदारे से। तो प्रॉब्लम इस जब आप ये नवाज शरीफ के लिए कर लेते हो ना, फिर आपने ये जुडिशरी में ये कानून में एक प्रेसिडेंट रख लिया है ना। अभी जो जब ना सिर्फ अभी इस लेटेस्ट स्टोरी के बाद, लेकिन जैसे ही हमारे स्पेशल असिस्टेंट्स और एडवाइजर्स जो वफाक में हैं उन्होंने अपने एसेट्स डिक्लेयर किए, तो तब मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ कि अगर इस मुल्क में एक कानून है तो फिर जो सलूक हमारे साथ होता है उस सारे के सारे एडवाइजर स्पेशल असिस्टेंट उन सब पे, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट टाइम दे हैड डिक्लेयर्ड देयर एसेट्स, उन पे भी फिर उम्मीद है कि लगेंगे। एंड अगर नैब केस नहीं फेस देखते हैं तो सिर्फ एक स्पेशल असिस्टेंट या एडवाइजर नहीं, काफी ज्यादा जो है एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस, जैसे खुर्शीद शाह साहब आपको पता होगा एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस भुगत रहा है। इल्जाम पहले लगा, फिर गिरफ्तार हुआ, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, आज तक खुर्शीद शाह साहब जेल में है और उसका एसेट बियॉन्ड मीन्स का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो अगर हमारा जो अकाउंटेबिलिटी का मिनिस्टर है, एडवाइजर है, उसका स्पेन में प्रॉपर्टी निकलता है, तो ये सवाल पूछने का हक हम सब के पास है कि इस एडवाइजर जिसका सरकारी नौकरी रहा है अब तक, उसको कैसे स्पेन में प्रॉपर्टी है। और अगर यही आदमी जिसके अपना स्पेन में प्रॉपर्टी है वो ऑनरेबल ऑनरेबल जस्टिस फायज ईसा की बीवी के लिए
जो ज़बान इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से टारगेट किया गया, अगर आप एक ऑनरेबल चीफ जस्टिस के लिए ये बार सेट करते हैं तो फिर वो अकाउंटेबिलिटी का एडवाइजर या स्पेशल असिस्टेंट जो भी उसका है, उसको भी इस किस्म का एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरना पड़ेगा। अगर नवाज शरीफ साहब के लिए पनामा का JIT बनता है तो पाकिस्तान के अवाम पूछेंगे कि जुल्फी बुखारी साहब का पनामा केस का क्या हुआ। और जो ये सबसे लेटेस्ट स्टोरी है जो अहमद नूरानी साहब ने छापा, अगर इस्तीफा दिया गया है तो फिर हम इसको ऐसे देखते हैं कि इसका मतलब ये होगा कि दाल में कुछ काला है। और अगर हमारे ऊपर न्यूज़पेपर स्टोरीज के बुनियाद पे JITs बनते हैं तो लोग सवाल पूछेंगे कि दूसरे के लिए JIT कब बनेगा, उनका गिरफ्तारी कब होगा। सितंबर 9 को सदर जरदारी का कोविड के बावजूद, मेडिकल बेल और अंडरलाइंग कंडीशन के बावजूद इस मुल्क का साबिक सदर अपना पेशी करेगा, कोर्ट में पेशी देगा, 3 केसेस में पेशी देगा। कौन से केसेस? ये कौन से केसेस? कि तोशा खाना, आपको जो गिफ्ट दिया गया तोशा खाना में, वो आप हिसाब दो या whatever। और साथ साथ फेक अकाउंट से, तो एक तरफ वो कहते हैं हम खरबोपति अरबोपति पता नहीं कितने ट्रिलियन बिलियन आया है फेक अकाउंट्स में एटसेट्रा, साथ साथ कहता है कि ये तो उनके पास पैसा ही नहीं है, तोशा खाना की गाड़ी खरीदने के लिए उनको मनी लॉन्ड्रिंग करना पड़ता है और वो भी अफोर्ड नहीं कर सके हम। तो ये आपस में वो फैसला भी करें कि क्या हम खरबपति है और हमारे इतने सारा है, या हम एक तोशा खाना का गाड़ी भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और अगर उस बुनियाद पे इस मुल्क का साबिक सदर, इस मुल्क का अफवाज का कमांडर इन चीफ, अगर उसको अपना पेशी करना पड़ता है तो शहजाद अकबर या जो भी स्पेशल असिस्टेंट होगा उनका भी बारी अब आ चुका है। अगर इस मुल्क में दोगला निजाम नहीं है, मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे हो, वैसे हमारा पार्टी का पोजीशन है कि सबको ड्यू प्रोसेस मिलना चाहिए, सबको ये हक मिलना चाहिए कि ना सिर्फ मैं मगर आप भी, आपका चैनल्स भी, उनको इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी के नजर से देखा जाए। अनफॉर्चुनेटली जो इमरान खान साहब है उन्होंने एक दूसरा प्रेसिडेंट, एक दूसरा बार रखा है, हायर बार रखा है, जो कि अब उनके अपने बंदों को पूरा उतरना पड़ेगा। सर जुमा का नमाज होने वाला है, आखिरी सवाल। राज़ी हो गए हैं, इत्तेफाक कर लिया है इन हाउस चेंज के लिए। उसके बाद अख्तर मैंगल साहब का भी, सरदार अख्तर खान मैंगल का भी आपसे रब्ता हुआ है। आपने इन स्पेकुलेशंस की दोनों पार्टियों ने तरदीद भी नहीं की है, तो क्या इस बात पे आप मुत्तफ़िक़ हैं कि इन हाउस चेंज होनी चाहिए? देखिए, मैंने अपना मुसलसल एक स्टांस रखा है कि हमें सारे ऑप्शंस हमारे सामने रखना चाहिए और सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए। जो से अपोजिशन पार्टीज फैसले करेंगे, किसी फैसले करें, जो भी हमारा कंसेंसस होगा हम उसी रास्ता को अपनाएंगे। लेकिन ज़रूर जब हम आपस में बात करते हैं, किसी का ख्याल होगा कि नहीं आपको इसको अगर एक दिन और रहेगा इसका नुकसान होगा और आपको अभी कदम उठाना चाहिए, अभी ऐसे किसी चीज़, दूसरे लोगों का ख्याल ये है कि इलेक्शंस हो एक्सेट्रा। तो हम आपस में जो स्ट्रैटेजी है, जो तरीक़ेकार होगा, वो हमें तय करना पड़ेगा, उस पे हमें एक पेज पे आना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक गोल है कि हमें इस मुल्क की अवाम को निजात दिलाना है, मुश्किलात जो वो सामने कर रहे हैं उसको अचीव करने के लिए हमें मिल के चलना पड़ेगा। और मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ कि सारे के सारे अपोजिशन पार्टीज जो मौलाना साहब की रहबर कमेटी की क़ियादत में कल जो मिले थे, अकरम दुरानी है कमेटी का, उन्होंने ये फैसला किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारा APC 20 सितंबर तक होस्ट करेंगे इस्लामाबाद, इंशाल्लाह इस्लामाबाद। थैंक यू।
میں بلاول بھٹو زرداری وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ اس دوران جانب سے یہ کہا گیا کہ مشکل کی اس گھڑی میں تمام لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم یہاں کے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔